Hi everyone. In last class we were doing the area and almost we are done with the area. So as we had discussed that we will begin differential equation, a fresh topic in the next lecture. So in today's session we are going to understand the introductory part of differential equation. What is differential equation and what are its classifications and what is the meaning of degree and order of differential equation and how do we form differential equations. So this is the basic scope of discussion of present lecture. So let us begin with differential equation, how it is defined. So any equation or any relation that connects the independent variable x, the dependent variable y, and the derivatives of y with respect to x is called differential equation. So we can say that an equation that involves the independent variable x, dependent variable y, and the derivatives of y with respect to independent variable x. For instance, I can write this as some function of x comma y comma dy by dx comma d2y over dx square and so on. There may be higher order derivatives involved equal to 0. So if an equation is relating these quantities, relating x with the derivatives, then we call such equation as differential equation. And it is primarily it is classified into two forms, two types. One is called ordinary differential equation, ODE, ordinary differential equation, and the other is called partial differential equation. Partial differential equation. So let's try to just define both the categories. What do you understand by ordinary differential equation? As we said that the differential equation involves x, y and derivatives. So based on the nature of derivative, if derivative involved in the differential equation are referred to single variable, derivative are taken with respect to single independent variable, then it is called ordinary differential equation. So it is, otherwise it will be termed as partial one. So a differential equation is said to be ordinary differential equation if the differential coefficients of y have reference to a single independent variable only. For example, d2y or dx square plus 3dy by dx plus 2y equal to 0. तो y का डेरिवेटिव ले रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव भी ले रहे हैं, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव ले रहे हैं, लेकिन डेरिवेटिव ले किसके रिस्पेक्ट में रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में. तो ये सिंगल वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स देख रहे हैं, तो इसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे. Similarly, a differential equation will be called as partial differential equation if the derivatives involved have reference to two or more independent variables. For instance, del y over del x plus del x over del y plus del y over del z equal to 0. तो इसमें कई सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही होता है. तो बिकॉज एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल्स हैं, तो एक डिपेंडेंट लेंगे तो रेस्ट टू आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दो वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव की बात हो रही है, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाएगा.
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा बोलूं x dy बाई डी एक्स प्लस e raised to the power x equal to 1. So it is ordinary differential equation. d2y over dx square is equal to 2y. It is ordinary differential equation. But d2z over del x square plus d2y over d2z over del y square plus d2z over del x del y equal to x. It is a partial differential equation. तो ये पार्शियल है पी डी ई और ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ओ डी ई। तो हमारा जो स्कोप ऑफ डिस्कशन है 11th and 12th तक up to 12th and JEE main and advanced, we are only concerned with the ordinary differential equations. We are not going to discuss the partial differential equation, neither they are in syllabus. सिर्फ ordinary differential equations ही हमें पढ़ने हैं। Now let's try to understand what is the meaning of order and degree of differential equation. So first, order and degree of differential equation. Order of differential equation क्या होता है? तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ते समय पढ़ा था ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, और हमने ये पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव मींस order of derivative tells us how many times y has been differentiated with respect to x. तो किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल को जब किसी डिपेंडेंट वेरिएबल को किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में सिंगल टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं तो डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 होता है, ट्वाइस डिफरेंशिएट करते हैं तो डेरिवेटिव का ऑर्डर 2 होता है, एंड सो ऑन. So what is order of differential equation? Order of a differential equation is order of a highest order derivative present in the differential equation. Order of highest order derivative present in the differential equation. तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसी के ऑर्डर को हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं. ये बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, इसमें कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है. Whereas डिग्री क्या है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर derivative. Degree is the highest power of highest order derivative present in the differential equation. Means first of all you have to look into the differential equation, then you go search for the highest order derivative of the differential equation. फिर उस highest order derivative की जो सबसे बड़ी power है that is called degree, provided the equation is made free from all radical signs, root signs and fractions as far as derivatives are concerned. तो कोई भी डेरिवेटिव फ्रैक्शनल पावर के साथ नहीं होगा, किसी भी डेरिवेटिव की पावर फ्रैक्शन नहीं होगी, किसी डेरिवेटिव की पावर नेगेटिव इंटीजर नहीं होगी. तो ऐसा पहले हम बनाएंगे. फर्स्ट वी विल मेक द इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस एंड देन वी विल ऑब्जर्व the highest order derivative and its power. The power of highest order derivative is called as degree of differential equation. अब ये जो ऑर्डर एंड डिग्री की बात कर रहे हैं, अगर इसको समझना हो तो ऐसे देखो. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं. 3x square dy by dx minus d2y over dx square whole square plus x d2y by dx square whole cube equal to y. ऐसा कोई इक्वेशन है.
तो दिस इज, इसका ऑर्डर देखो तो सेकंड डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, तो वही ऑर्डर है। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो इसमें इन्वॉल्व है वो सेकंड ऑर्डर का है। एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिग्री जो है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर होती है वो है, तो इट इज 3। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आना चाहिए और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या मीनिंग होता है उसका। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इक्वेशन ऐसा है, एफ एक्स वाई सम एक्सप्रेशन ऑफ एक्स वाई इन, फॉर इंस्टेंस the differential equation is some expression of xy into mth derivative of y with respect to x to the power p plus some other function of xy into m minus 1th derivative of y with respect to x power p minus 1 and so on. So इसमें देखो तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है mth डेरिवेटिव है और इसकी पावर है p, तो हम बोलेंगे इसका ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। तो इसका ऑर्डर होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है इसमें, mth ऑर्डर का, तो ऑर्डर इज m, एंड डिग्री उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है तो क्या है p। ऑर्डर इसका m है और डिग्री p है। तो ऑर्डर और डिग्री समझ में आ गया, तो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ सम डिफरेंशियल इक्वेशंस। सॉल्व करिए इनको और देखिए इक्वेशन को, लुक एट द इक्वेशन, उसको थोड़ा सा ध्यान से वॉच करिए और बताइए इसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पार्ट, dy by dx इक्वल टू साइन एक्स, तो डेफिनेटली इसका ऑर्डर बताना है हमें और डिग्री बतानी है। तो ऑर्डर तो सीधा सीधा होता है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसी का ऑर्डर इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो ऑर्डर इज 1 और इसका पावर 1 है तो डिग्री इज 1। ए पार्ट इज डन। बी पार्ट पे आते हैं, ए पार्ट ओवर, बी पार्ट, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है और उसकी पावर 1 है तो ऑर्डर इज 2, डिग्री इज 1। तो सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट डिग्री, सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। सी पार्ट पे आते हैं सब। सी पार्ट में क्या ऑब्जर्व किया आपने, y dx plus x dy, it can be rewritten as y plus x dy by dx. Now you will figure out that order is 1 and degree is 1. And lastly d part पे आ जाते हैं। d part पे बताइए क्या है आपका ओपिनियन। इसमें देखा हमने तो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी है, थर्ड ऑर्डर का भी है, फर्स्ट ऑर्डर का भी है, तो ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है तो ऑर्डर इज 3। एंड डिग्री, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो कितनी है, हाईएस्ट पावर 2। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 है, फर्स्ट ऑर्डर की 4 है, हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर चाहिए तो 2। तो इट इज सिंपल, ऑर्डर डिग्री फाइंड करने में उतना कोई चैलेंज नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि ऑर्डर और डिग्री का मतलब क्या होता है, हाउ डू वी फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। नाउ लेट्स मूव टू दी ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस, कि ये जो ऑर्डर है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, डिग्री का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन का ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस क्या है। तो ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन प्राइमरली क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर आपसे बोला जाए dy by dx,
y dy by dx इक्वल टू x, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है? तो बेसिकली इसका मतलब इन्होंने बोला कि dy by dx जो है वो x अपॉन y है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं x और y की एक वैल्यू इनिशिएट करता हूं, x और y की कोई वैल्यू एक लेता हूं, मान लो कुछ भी x इक्वल टू y इक्वल टू 1, तो 1,1 एक पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, 1,1 एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट पर इमीडिएटली डेरिवेटिव की स्लोप आ गई, इस पॉइंट पर डेरिवेटिव की एक स्लोप आ गई, डेरिवेटिव की एक वैल्यू आ गई 1। dy by dx 1 का मतलब है कि इस पॉइंट पर ये पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन ये ऐसे आ गई। अब क्या होगा कि कर्व इस ये पॉइंट मान लो, और ये पॉइंट, ये स्लोप बताती है कि पॉइंट किधर मूव करेगा, तो ये पॉइंट थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा शिफ्ट हो गया तो उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। अगर वो चेंज हो गया तो डेरिवेटिव चेंज हो गया, उसकी वजह से डायरेक्शन चेंज हो गई ऐसे। फिर पॉइंट नेबरिंग पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा, और कंटिन्यूअसली जैसे जैसे उसका कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, और एक इनिशियल पोजीशन लेने के बाद में आपको एक कर्व ऐसे मिल जाएगा, ऐसा ऐसा एक कर्व मिल जाएगा। इसी तरह से जब आप एक्स वाई की कोई दूसरी इनिशियल वैल्यू दोगे, क्योंकि देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एक्स और वाई में रिलेशन होता है, इसका मतलब है कि अपने आप ट्रिगर करेगा मूवमेंट को अगर आप एक एक्स वाई की वैल्यू दे दे तो इनिशियल कंडीशन जो एक्स और वाई की वैल्यू हम फिक्स करते हैं उसको बोलते हैं इनिशियल या बाउंड्री कंडीशन। द मोमेंट you fix up that boundary condition, derivative automatically gets determined, and because of the derivative the particle or point moves in that direction, therefore changing its x and y coordinate. For new changed xy coordinate there will be new derivative and therefore a new direction of movement. तो डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप पॉइंट को स्टीयर करता है। तो एक इनिशियल पॉइंट से एक कर्व ट्रेस हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट चेंज कर दोगे तो एक और कर्व ट्रेस हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट चेंज कर दोगे तो एक और कर्व ट्रेस हो जाएगा ऐसे। तो इनिशियल पॉइंट आप चेंज करते रहेंगे और ऐसे कर्व चेंज होते रहेंगे, मिलते रहेंगे। एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन इज कैपेबल ऑफ ट्रेसिंग इनफिनाइट नंबर ऑफ कर्व्स। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि व्हाट डज डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट, तो हम क्या बोलेंगे, वो यहीं से समझ में आता है कि जरा ध्यान से देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो यही था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y dy इज इक्वल टू x dx। फिर अगर हम इंटीग्रेट कर दें इसी को तो आ जाएगा y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, एंड देयरफॉर इट इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू c नॉट, ऐसा, विच इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो नहीं बोलो, फैमिली ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फैमिली ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब ये इनफिनाइट नंबर ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थोड़ी बात समझ में आ गई, तो इसको अब डिस्क्राइब कर लेते हैं। सो जस्ट राइट इट डाउन दैट अ डिफरेंशियल इक्वेशन geometrically represents a family of curve and some individual curve. तो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? एनी डिफरेंशियल इक्वेशन ज्योमेट्रिकली represents a family of curve and sometimes it also represents some individual curves as well. Similarly इसी तरह से ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर क्या होता है? तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन represents the number of times, it tells us the number of times the differential equation has been differentiated, yeah, the family of curve has been differentiated in order to arrive at the differential equation. समझो इसको, जैसे अभी हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिया था, उसको हमने डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट करके एक फैमिली ऑफ कर्व निकाला था, राइट? इसी तरह से अगर आपके पास एक फैमिली ऑफ कर्व है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वेयर ए इज अ पैरामीटर, तो हमें इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना होगा? डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आएगा 2x
माइनस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो आ गया x माइनस वाई डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये पैरामीटर को एलिमिनेट करने के लिए हमने इसको डिफरेंशिएट किया, उससे एक रिलेशन आ गया। तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व हुआ, इसीलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो ऑर्डर क्या बताता है? ऑर्डर लिख दो, ऑर्डर टेल्स अस द नंबर ऑफ टाइम्स द डिफरेंशियल इक्वेशन या द फैमिली ऑफ कर्व इज differentiated, family of curve is differentiated to form that differential equation, to form the differential equation. अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए फैमिली ऑफ कर्व को कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन उस फैमिली ऑफ कर्व में कितने पैरामीटर्स हैं। जैसे अगर कोई फैमिली ऑफ कर्व है ax प्लस by प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें दो पैरामीटर हैं a एंड b, ये रियल पैरामीटर्स हैं। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा a प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस इक्वल टू 0, ऐसा आ गया। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा b सेकेंड डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज सेकेंड डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो आ गया। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया ये सेकेंड ऑर्डर का आया। सेकेंड ऑर्डर का क्यों आया? क्योंकि इसमें दो पैरामीटर्स प्रेजेंट थे। तो ये भी हम लिख सकते हैं that the order of differential equation represents number of effective parameters present in the family of curve given by the differential equation। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, उस फैमिली ऑफ कर्व में जितने इफेक्टिव आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें डिफरेंशिएट करके और वो कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और जितने इफेक्टिव कांस्टेंट होंगे उतनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, then only the elimination will be possible. So the order will represent the number of effective parameter present in the differential equation. The number of parameter in the family of curve are exactly equal to the order of differential equation. This is one point which is important to note. Second, in order to find the solution of differential equation, the differential equation is to be integrated exactly that many times as its order. इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y की वैल्यू मतलब फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा। तो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव में दो बार इंटीग्रेट करेंगे तब जाके फैमिली ऑफ कर्व मिलेगी। ईच इंटीग्रेशन इंड्यूसेस और इंट्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जितना ऑर्डर होगा उतनी बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जितनी बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उस इक्वेशन में उसके फैमिली ऑफ कर्व में प्रेजेंट होंगे। इसीलिए बोला गया कि ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इफेक्टिव आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट इन दी फैमिली ऑफ कर्व। ठीक है, तो ये चाहे जिस तरह से आप इंटरप्रेट करो, ऑर्डर का मतलब और डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए।
बाकी जैसे जैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे या फॉर्मेशन करेंगे तो द थिंग्स विल गेट मोर एविडेंट। तो ऑर्डर समझ में आया। जैसे अगर ऑर्डर 1 है, इसका मतलब उसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है, जैसे कि y = mx+2। ये सिंगल पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व होती है। इसमें 0,2 से पास करें, m की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस आएंगे इसे। तो as you keep on varying m, the lines will vary, but all the lines will pass through 0,2। तो ये सिंगल इन्फिनिटी कर्व बोलते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ कर्व बोलते हैं। वर्चुअली देखो तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, आएगा dy/dx = m। फिर ये इक्वेशन है, और एक बार डिफरेंशिएट करके एक और इक्वेशन आया। ये दो इक्वेशन है, क्योंकि हमारा एक पैरामीटर था, एलिमिनेशन के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए। याद है ना, अलजेब्रा में एक अननोन को एलिमिनेट करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए होते हैं, दो अननोन को एलिमिनेट करने के लिए तीन इक्वेशन चाहिए होते हैं। तो एक इक्वेशन तो ये फैमिली ऑफ कर्व ही गिवन है, एक डिफरेंशिएट करके आपने ये बनाया। अब इन दोनों की हेल्प से हम m को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो m की जगह पर इसमें पुट कर दो, तो आएगा क्या? y = x dy/dx +2। ये है इस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो आप, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसीलिए इसको, इससे यहां जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, dy/dx × x = y-2। फिर इसको लिखेंगे dy/y-2 = dx/x। फिर इंटीग्रेट कर देंगे, तो आएगा y-2 का log = log of x प्लस m, कांस्टेंट है, log m लिख दो, log m c को। तो यहां से आएगा y-2 = mx, y = mx+2। तो प्रोसेस बड़ी सिंपल है जी, कि डिफरेंशियल फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए जितने पैरामीटर्स होंगे, जितने अननोन होंगे, उतनी बार डिफरेंशिएट करके, एलिमिनेशन करके ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। इसी को बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी इसको डिटेल करेंगे हम लोग। और एक डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें मिल गया, कैसे मिला? डिफरेंशिएट करके, फैमिली ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके फैमिली ऑफ कर्व मिलेगी। तो मैंने इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो इंटीग्रेट किया, वेरिएबल्स को अलग करके ऐसा करके इंटीग्रेट किया। बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर का था इसलिए एक बार इंटीग्रेट करना पड़ा, एक बार इंटीग्रेट किया तो एक कांस्टेंट आ गया। इसी को बोलते हैं सिंगल पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। तो इसीलिए मैंने बोला कि जितना ऑर्डर होगा उतनी बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और हर एक इंटीग्रेशन से एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, तो उतने पैरामीटर की फैमिली ऑफ कर्व जनरेट होगी। और कन्वर्सली, जितने ऑर्डर का फैमिली ऑफ कर्व होगा, जितने पैरामीटर की फैमिली ऑफ कर्व होगा, नंबर ऑफ पैरामीटर के बराबर उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के लिए। और जितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो एक पैरामीटर है तो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, टू पैरामीटर की फैमिली ऑफ कर्व है तो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, एंड सो ऑन। और वो एक पैरामीटर की फैमिली ऑफ कर्व है। फर्स्ट ऑर्डर मतलब सिंगल इन्फिनिटी कर्व, ऐसे ही सेकंड ऑर्डर का मतलब डबल इन्फिनिटी कर्व। अगर ऑर्डर 2 है तो डबल इन्फिनिटी कर्व है, मतलब उसके फैमिली ऑफ कर्व में दो पैरामीटर होंगे। जैसे y = mx+c, तो अगर c की वैल्यू मैं 0 देता हूं तो ओरिजिन से पास करती हुई ये सारी लाइंस होंगी, इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन हर एक स्लोप की। ऐसे c की वैल्यू आपने चेंज कर दी, 1 कर दी, तो y = mx+1, फिर से इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन आ जाएंगी स्लोप को चेंज करके। c की वैल्यू 2 कर दिया, फिर से इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस आएगी स्लोप चेंज करके। तो for every c there are infinite number of lines concurrent at one point 0, c. So because c can have infinite value, therefore infinity into infinity number of lines, इसको infinite square number of line या double infinity curve बोलते हैं, infinite square curve।
मतलब इनको कवर करने में, इनको ट्रेस करेंगे तो एक्स वाई प्लेन का हर पॉइंट जो है वो एक बार कवर होगा इस पॉइंट को छोड़ के, बट इन सभी को ट्रेस करेंगे तो ईच पॉइंट ऑफ एक्स वाई प्लेन विल बी कवर्ड इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। तो फर्स्ट ऑर्डर मतलब है कि एक बार पेंट कर देना पूरे सरफेस को, सेकेंड ऑर्डर का मतलब है इनफाइनाइट कोट कर दिया आपने। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर सिंगल पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व है। तो जैसे एक रिपल ऑफ वाटर है, कहीं पर आपने वाटर सरफेस वैसे रिपल क्रिएट किया और वो वेव फ्रंट जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में सर्कुलर वेव फ्रंट ट्रेवल करती है, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, ये सिंगल पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व है। बट इसी को एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर कर दो, एच वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है, तो एच की हर वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स आएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। एच जीरो किया तो ये वाले आ गए, एच वन किया तो 1,0 सेंटर और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल, एंड ऐसे ही। तो ये हो गया तुम्हारा इनफाइनाइट ऑफ इनफाइनाइट कर्व, डबल पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। अब ऐसे ट्रिपल पैरामीटर फैमिली मतलब इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी कर्व, इनफाइनाइट क्यूब कर्व। तो ऑर्डर का ज्योमेट्रिक सेंस कुछ ऐसा होता है। नाउ ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस ऑफ डिग्री, so let's try to figure out what does degree means, right? तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमने क्या डिफाइन किया था? हमने डिफाइन किया डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ highest order derivative present in the differential equation when the equation is free from radicals and fractions. तो डिग्री का मीनिंग क्या है मैं समझा देता हूं, देन आई विल टेक एन एग्जांपल एंड ट्राई टू इलस्ट्रेट कि क्यों है ऐसा। तो लिखेंगे in case of first order differential equation, अगर एक first order का differential equation ले, the degree of differential equation represents the number, maximum number of possible directions on the graph of family of curve at any point. इस बात को कुछ ऐसे समझ सकते हैं आप कि अगर हम डिग्री की बात कर रहे हैं, अगर एक फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं जिसका डिग्री 2 है, just to understand this, suppose I have taken dy by dx whole square minus 3 dy by dx 3x dy by dx plus 2y equal to 0, ऐसा है मान लो। As we know that dy by dx represents slope of the curve at some point, slope कौन सा पॉइंट पर? slope at x comma y. So at any point alpha comma beta p, because every point satisfies this, so x is alpha, y is beta, and derivative of curve at alpha beta is dy by dx, let us call it m. तो अगर मैं इसमें पुट करूंगा अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, dy by dx m square minus 3 alpha into m plus 2 beta equal to 0, which is a quadratic in m. तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करोगे तो एक स्लोप में उस पॉइंट की स्लोप जो होगी उसमें एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा, एंड क्वाड्रेटिक मींस at most two values of m,
और m की दो वैल्यू का मतलब क्या होता है? m की दो वैल्यू का मतलब होता है कि मान लो ऐसा कर्व है और यहाँ पर दो वैल्यू आ गई, तो मतलब है कि दो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हो गया। m की वैल्यू ऐसे, यहाँ पर एक स्लोप ऐसे आ गई, एक स्लोप ऐसे आ गई। कौन से पॉइंट पर? अल्फा कॉमा बीटा पर। तो दो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हो गई। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये बताता है, और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये बताता है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन से जो फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट होगी, उस फैमिली ऑफ कर्व के किसी भी पॉइंट पर ज्यादा से ज्यादा दो ब्रांचेस ओरिजिनेट होंगी। तो लेट मी जस्ट रिकॉल इट अगेन। मैंने बोला इफ y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, क्लियरली इसका डिग्री 2 है। अगर मैं कोई भी अल्फा बीटा पॉइंट लेता हूं ऑन द फैमिली ऑफ कर्व, तो अल्फा बीटा सेटिस्फाई करता हो, तो इसका मतलब है कि डेरिवेटिव एट अल्फा बीटा इज सपोज m, देन आई विल गेट m स्क्वायर प्लस m अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब अल्फा बीटा की वैल्यू कुछ भी हो, एक क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक से m की मैक्सिमम दो ही वैल्यू मिलेगी, तो एट मोस्ट टू रियल वैल्यू ऑफ m कैन बी ऑब्टेन्ड, एंड देयरफॉर एट मोस्ट टू डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज पॉसिबल एट एनी पॉइंट। ये भी हो सकता है कि किसी अल्फा बीटा के लिए इसका d लेस देन 0 हो जाए, तो उस पॉइंट से कोई भी डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं होगी, मतलब वो एंड पॉइंट, मतलब वो सीधे सीधे आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा। और अगर दोनों इक्वल, रियल इक्वल रूट आ गए इस क्वाड्रेटिक के, मतलब है कि उस पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होगी, वो डिफरेंशिएबल होगा। अगर दो डिस्टिंक्ट रूट आ गए, इसका मतलब है कि दो स्लोप होगी, दो डायरेक्शन होगी। दो से ज्यादा रूट तो नहीं आ सकते ना, इसलिए मैक्सिमम दो डायरेक्शंस होंगी। तो डिग्री क्या बताता है? डिग्री बताता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल डायरेक्शंस on the graph of family of curve represented by differential equation। तो डिग्री भी समझ में आ गया, ऑर्डर भी समझ में आ गया। ऑर्डर एंड डिग्री की बात समझ में आने के बाद में लास्टली हम आते हैं एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हाउ वी फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप हेडिंग दीजिए फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और फॉर्मेशन पर काफी अच्छे सम्स भी पूछे जाते हैं, बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक। तो फॉर्मेशन में क्या करते हैं, थोड़ा आइडिया तो आपको हो ही गया। दैट सपोज वी आर गिवन अ फैमिली ऑफ कर्व हैविंग n नंबर ऑफ पैरामीटर्स। मान लो हमारा फैमिली ऑफ कर्व है f ऑफ x y c1 c2 c3 cn इक्वल टू 0, उसमें n नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने का मतलब क्या है कि इस फैमिली ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट करके, ये सारे पैरामीटर्स को एलिमिनेट करके एक्स वाई और डेरिवेटिव्स में एक रिलेशन फाइंड करना। कितने पैरामीटर हैं जी? n पैरामीटर्स हैं। n पैरामीटर्स को एलिमिनेट करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए होते हैं? तो जितने अननोन पैरामीटर्स होते हैं एलिमिनेशन के लिए, उससे एक ज्यादा इक्वेशन चाहिए होता है। तो वी नीड n+1 इक्वेशंस। हाउ डू वी ऑब्टेन दोज n+1 इक्वेशन? तो एक इक्वेशन तो यही है। Rest n equations we obtain by differentiating the same equation n times, and therefore we get n, those n equations are by derivative and 1 itself, so n+1 equation and elimination will be performed। तो लिखते जाओ, पहला स्टेप क्या होगा? To find the differential equation we follow the given algorithm। First, differentiate the above family of curve n number of times, exactly as many times as the effective number of parameters, as many times as the number of arbitrary constant, effective arbitrary constant। Step 2, then eliminate the n number of parameters obtained out of n+1 equations। तो एक इक्वेशन ऑलरेडी फैमिली ऑफ कर्व का गिवन है, n इक्वेशन आपने डिफरेंशिएट करके डिटरमिन किया, n+1 इक्वेशन में से का हेल्प से n नंबर ऑफ पैरामीटर को एलिमिनेट कर दो। आफ्टर एलिमिनेशन, the relation between x, y and derivative obtained, the eliminant equation thus obtained relating x, y and derivatives is called differential equation, and this process is called formation of differential equation। For example,
मैंने बोला कि y इज इक्वल टू 2x प्लस सी है, 2x² प्लस सी है। तो इसका फॉर्मेशन के लिए एक अननोन है, एक बार डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x, हो गया फॉर्मेशन। ये फैमिली ऑफ कर्व है, ये उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। अनदर इलस्ट्रेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस सी है, दो पैरामीटर हैं, तो dy बाई डी एक्स किया तो क्या है, m। अब m की वैल्यू इसमें डाल भी दो तो भी एलिमिनेशन कंप्लीट नहीं होता, आ जाता y इज इक्वल टू x dy बाई डी एक्स प्लस सी। अब ये c एलिमिनेट करने के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा, एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक बार और डिफरेंशिएट करने के लिए दो तरीका है, यहीं पर मैं एक बार डिफरेंशिएट कर देता तो आ जाता सेकेंड डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0, आ गया। अगर आप यहां करते हैं तो आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स। अब ये dy बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहां से भी वही आएगा, सेकेंड डेरिवेटिव वही आ जाएगा। तो कैसे भी किया, दो पैरामीटर थे तो दो बारी डिफरेंशिएट करके और पैरामीटर्स एलिमिनेट करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हुआ। इसी प्रोसीजर को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्मेशन मतलब डिफरेंशिएशन, और सॉल्विंग, फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना मतलब डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, और इसी का रिवर्स ऑपरेशन है सॉल्विंग की डिफरेंशियल इक्वेशन को रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम इंटीग्रेट करके फैमिली ऑफ कर्व क्रिएट करना, उसको बोलते हैं सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो प्रोसीजर समझ में आया तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये तो हमने कर ही लिया। यहां ध्यान ये रखना है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्टली उतनी बार डिफरेंशिएट करना है जितने उसमें पैरामीटर्स हैं, उससे ज्यादा नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हमने एक बार डिफरेंशिएट किया y प्राइम आ गया m, फिर डिफरेंशिएट किया y डबल प्राइम आ गया 0। अगर मैं इससे ज्यादा डिफरेंशिएट कर दूं तो आ जाएगा y ट्रिपल प्राइम भी 0 आ जाएगा, d3y ओवर dx क्यूब 0 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये भी तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, बोलेंगे यस ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम सॉल्व करें तो थर्ड डेरिवेटिव 0 का मतलब क्या होता है, सेकेंड डेरिवेटिव कांस्टेंट, d2y ओवर dx स्क्वायर कांस्टेंट। इसके लिए तो डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट नहीं 0 होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब है इसकी इन्फिनिट वैल्यू होंगी, तो इसके अलावा इन्फिनिट नंबर ऑफ और भी करवाएंगे। कैसे आएंगे, इसके बाद लिख दो dy बाई डी एक्स d ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी डी एक्स हो गया। फिर इंटीग्रेट कर दो तो यहां से आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। फिर से एलिमिनेट होगा ये, यहां से इस वाले स्टेप के बाद फिर ऐसे लिखेंगे dy इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी डी एक्स, फिर इंटीग्रेट होगा तो y इज इक्वल टू आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस डी एक्स प्लस ई। तो आपने देखा ये क्या हो गया, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये तो फैमिली ऑफ पैराबोला आ गया। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन, किसी भी फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते समय ध्यान इस बात का रखना है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को उतनी ही बार डिफरेंशिएट करना है जितने उसका ऑर्डर, मतलब जितने उसमें फैमिली ऑफ कर्व के अंदर जितने पैरामीटर्स हैं इफेक्टिवली।
अगर 2 पैरामीटर की है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है, 3 की है तो 3 बार, 1 की है तो 1 बार। अगर आप रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इफेक्टिव पैरामीटर से लेस डिफरेंशिएट करोगे तो फॉर्मेशन होगा नहीं, और अगर ज्यादा टाइम डिफरेंशिएट कर दोगे तो वो रॉन्ग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, जो जिसमें उस फैमिली ऑफ कर्व के अलावा इनफिनिट नंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व और भी इंगेज इन्वॉल्व हो जाएंगी। So now let's take some example. Find the differential equation of the following family of curve. अब एक फैमिली ऑफ कर्व है, इसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो देखो बड़ा सिंपल है, पहले आप इसको खुद अटेम्प्ट करो, देखो, रीड करो क्या दिख रहा है कि एक फैमिली ऑफ कर्व है जिसमें 2 पैरामीटर प्रेजेंट हैं, ए एंड बी। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव पैरामीटर 2 है। इफेक्टिव पैरामीटर का मतलब जिसके नंबर को आप फर्दर रीअरेंजमेंट या मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन से रिड्यूस ना कर सको। जैसे अगर कोई इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जीरो, तो इसमें अपरेंटली तो 3 पैरामीटर हैं बट इफेक्टिवली 2 ही है, a बाई सी एक्स प्लस बी बाई सी वाई प्लस 10, तो इफेक्टिव 2 ही है इसमें। तो ये हम इफेक्टिव की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इफेक्टिव 2 है। तो हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करो तो y प्राइम क्या है बोलो, a e की पावर x माइनस b e की पावर माइनस x। एक इक्वेशन ये गिवन था, एक इक्वेशन ये हो गया। अब एक बार और डिफरेंशिएट करना है, तो y डबल प्राइम क्या आएगा, तो आएगा a e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x माइनस माइनस प्लस b e की पावर माइनस x। अब ये जो 3 इक्वेशंस मिले हमें, इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से हमें a और b को एलिमिनेट करना है। दिस फर्स्ट इक्वेशन, दिस सेकंड इक्वेशन में सेकंड एंड थर्ड, एंड फर्स्ट तो दिया ही हुआ था। eliminating a and b, eliminating a and b from 1, 2 and 3 क्या आया, तो हम देख रहे हैं यहाँ कि अगर फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू यहां डाल दी जाए तो फर्स्ट और थर्ड से एलिमिनेट हो जाएगा, सेकंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या, y डबल प्राइम इज इक्वल टू y, दैट इज d2y over dx square minus y equal to 0. This is the desired differential equation. ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसीलिए 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। और 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व है तो सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। यही चीज, यही कनेक्ट आपको समझना है कि जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसकी फैमिली ऑफ कर्व में उतने उतने पैरामीटर्स होंगे, और जितने पैरामीटर की फैमिली ऑफ कर्व होगी उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। ये फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन में हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन यूज किया। और डिफॉर्मेशन मतलब सॉल्विंग, सॉल्विंग करेंगे तो हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे। सॉल्विंग एंड फॉर्मेशन एक दूसरे की रिवर्स इनवर्स प्रोसेस है। फॉर्मेशन मतलब डिफरेंशिएशन, सॉल्विंग मतलब इंटीग्रेशन। ऐसे ही बी पार्ट करते हैं। पार्ट बी, फिर से देखा हमने 2 अननोन है ए एंड बी, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, एक्स वाई प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। पहला इक्वेशन ये था, दूसरा ये था। फिर से एक बार डिफरेंशिएट किया, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा,
एक्स वाई डबल प्राइम प्लस वाई डैश फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट प्लस वाई का डेरिवेटिव वाई डैश इज इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। ये थर्ड इक्वेशन आ गया। नाउ यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रॉम 1 एंड 3 एक क्लियर कट सा दिख रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है, ए साइन प्लस बी कॉस एक्स इज एक्स वाई, तो आ गया एक्स वाई डबल प्राइम प्लस 2y प्राइम is equal to x into y negative, and therefore हमें मिला x d2y over dx square plus 2 dy by dx plus xy equal to 0. This is the required differential equation. तो डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना मतलब आप देख रहे हो कि इस तरह से आप डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं। Let's take one more problem, a geometric problem. Sometimes ऐसा होगा कि आपको एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम गिवन होगी, उससे आपको फैमिली ऑफ कर्व लिखना पड़ेगा और फिर उस फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। मतलब उसमें ज्योमेट्री और कैलकुलस दोनों मर्ज कर देंगे। जैसे मान लो एक सिचुएशन, एक आइडियल एग्जांपल लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। अब ओरिजिन पर एक्स एक्सिस को टच करने वाले जितने भी सर्कल्स हैं उनका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है। तो पहले तो हमें सोचना है कि कौन से सर्कल की बात हो रही है। तो एक ऐसा सर्कल जो एक्स एक्सिस को टच करता है, और कहाँ टच करता है, ओरिजिन पर। ये ओरिजिन है। अब ऐसे कितने सर्कल हो सकते हैं, तो इन्फिनिट हो सकते हैं। जैसे ये है 0,c 0,r इसका सेंटर ले लो और r रेडियस ले लो, तो ऐसे ऐसा भी एक सर्कल हो सकता है, ऐसा भी एक सर्कल हो सकता है, एक सर्कल ऐसा भी हो सकता है, एक सर्कल ऐसा भी हो सकता है, एक सर्कल ऐसा भी हो सकता है। तो इन्फिनिट नंबर, क्योंकि r की वैल्यू आप चेंज करते जाओ, इधर भी ऐसे 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 इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स आर पॉसिबल, दोज हु टच x एक्सिस एंड एट ओरिजिन। अब सबसे पहले तो हमें इस सर्कल का इक्वेशन लिखना है। तो 0r सेंटर, r रेडियस, तो आ जाएगा x स्क्वायर मतलब x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। The equation looks like x square plus y square minus 2ry equal to 0. तो पहला स्टेप था कि जो ज्योमेट्री इन्होंने डिफाइन करी उससे पहले फैमिली ऑफ कर्व मैंने लिखी, इसमें पैरामीटर r है, आप देख सकते हो r इज अ पैरामीटर। अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फैमिली ऑफ कर्व, दिस गिवन फैमिली ऑफ सर्कल, क्या करना है हमें, डिफरेंशिएट वंस, क्योंकि एक ही पैरामीटर है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आएगा 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2r डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहां से अगर हम चाहें तो 2 को डिवाइड बाई 2 एंड यू विल गेट दैट द एक्सप्रेशन विल बी फ्री फ्रॉम 2, 2 हट गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, एक ये है और एक ये है। इन दोनों से हमें r को एलिमिनेट करना है, तो फटाफट इसका r एलिमिनेट करो बेटा दोनों इक्वेशन से। जैसे ही आप r को एलिमिनेट करोगे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। सो हाउ डू यू एलिमिनेट r, तो r की वैल्यू निकाल लो किसी भी एक जगह से जहां से आपको सुइटेबल हो। तो मेरे को ये दिख रहा है कि ये जो इक्वेशन है यहां से r की वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या, r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y।
अगर इसको हम ऐसे लिख दे 2x प्लस 2i डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 2r0, तो 2r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। तो 2r की जगह पे हम लिख देंगे तो आएगा 2x प्लस 2 टाइम्स x प्लस वाई इंटू वाई प्राइम माइनस 2r की जगह क्या आया, 2r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स मीन्स वाई प्राइम इक्वल टू 0। ऐसा आ गया, बस मिल गया आपको। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो, यू गेट द आंसर। y से मल्टीप्लाई कर देना तो आएगा 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर वाई प्राइम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई प्राइम। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसको क्या रिप्रेजेंट करता है, वो ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या सिग्निफिकेंस होता है, उसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, और उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ डू वी फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। फिर ऑर्डर का ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस क्या होता है, ज्योमेट्रिकली डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, और डिग्री का ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस क्या होता है, और फिर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और कैसे करते हैं। अब इसी फॉर्मेशन में ही आपको समझ में आएगा कि ऑर्डर क्या है और कैसे ऑर्डर का डेफिनेशन यहीं से कंफर्म हो जाती है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले तो फॉर्मेशन पर और डिग्री ऑर्डर पे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, एंड देन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मेथड ऑफ सॉल्विंग कैरी आउट करेंगे।